Welcome to the feasts of the Lord. परमेश्वर का भोज में आपका स्वागत है। We're continuing our discussion of the Melchizedek priesthood. मिल्किजेदेक की रीति पर के याजक के चर्चे को हम जारी रखेंगे। We've been looking at Psalm 110 and also Psalm 2 and pulling together the theology of this kingly priest, Yeshua. हम भजन 110 और भजन 2 से जो है इस धर्म विज्ञान को साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि मसीहा की राजापन और याजकपन के विषय पर। In the first 6 verses of Psalm 2, we see the Lord's attitude toward the raging and rebellious nations. भजन 2 के पहले 6 पद की ओर हम देख रहे थे कि परमेश्वर की विचारधाराएं उन बलवा करने वाली राजाओं के विरोध में जो था। And we've already covered those. उन बातों को हमने पहले से देख चुके हैं। So let's move on to the final verses 7 through 12. हम जो है अंतिम भाग की ओर जाएंगे भजन 2 के 7 से लेकर 12 पद तक। Now, when verse 7 begins, the speaker has changed from the Father to the Son. 7वें पद में हम देखने पाते हैं बोलने वाला भी बदल चुके हैं, पिता से अभी पुत्र बोल रहे हैं। Because in verse 6, the Father is saying, "Yet I have set my King, my Son, on my holy hill of Zion." 6ठे पद में पिता परमेश्वर कहता है कि मैं अपने पुत्र को उस पवित्र पर्वत सिय्योन पर राजगद्दी में बैठा दिया हूँ। But listen to how it changes in verse 7, for now the Son is speaking. अब यो 7वें पद में देखिए जहाँ पे पुत्र बोल रहे हैं। The Son says, "I will declare the decree," or in Hebrew you could say, "I will declare the law." यहाँ पे पुत्र कहता है मैं उस वचन का प्रचार करूंगा, जिसका मतलब वो उसकी घोषणा करेगा। So what he's about to say is a heavenly law. जो अभी वो कहने वाले हैं वो स्वर्गीय कानून है। The Lord Yehovah has said to me, "You are my son. Today I have begotten you. Ask of me, my son, and I will give you the nations for your inheritance and the ends of the earth for your possession." जो यहोवा ने मुझसे कहा तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। It's very, very interesting. बहुत ही दिलचस्प है। When the Father says, "I have begotten you," he uses a very specific Hebrew word. जब यहाँ पे पिता जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, मैंने तुम्हें गोद लिया है, इब्रानी भाषा में एक नियुक्त शब्द इस्तेमाल किया गया है। I'm highlighting this word because we want to emphasize the doctrine that the Lord did not create his Son. The Son of God is an uncreated God. इस शब्द को मैं इसलिए जोर देना चाहती हूँ कि उस सिद्धांत को मैं साबित कर सकूं कि मसीहा सृष्टि किया गया व्यक्ति नहीं है, मसीहा को सृष्टि नहीं किया जा सकता। That's why the Father doesn't say, "Today I have created you, Son." He says, "Today I have begotten you." इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर पिता ये नहीं कहता है कि पुत्र मैंने तुम्हें उत्पन्न किया, सृष्टि किया, मगर मैं तुम्हें जो गोद लिया हूँ। The word in Hebrew is the exact same word as when a woman gives birth to a child, even up to modern times. यहाँ पे जो इब्रानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो ठीक वही शब्द है जो एक महिला, गर्भवती महिला बच्चा को जन्म देती है। So the Father, in some sense, gave birth to his Son. कुछ हद तक यहाँ पर पिता ने पुत्र को जो है जन्म दिया है। It is possible he's referring there to the incarnation. ये संभव है पुत्र के अवतार के विषय में यहाँ पर बता रहे हों। It's possible he's saying, "When I sent you to earth to be born as a baby, I begot you as a baby." ये संभव ये भी है कि जब पिता परमेश्वर ने उसे पुत्र के रूप में, एक बच्चे के रूप में पृथ्वी में भेजा था, तब उसने उसे गोद लिया। Or I suppose it's possible that this is referring to some kind of ancient reality before there was time between the Father and the Son. ये भी संभव है ये सनातन के समय के बारे में बताता हो जहाँ पे पिता और पुत्र के संबंध के विषय में हो। Now verse 8 and 9 are very important. अब 8 और 9 पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। Now the Father is speaking to the Son again. अब पिता फिर से पुत्र से बात कर रहे हैं। He says, "Ask of me, and I will give you the nations for your inheritance, and I will give you the ends of the earth for your possession. You shall break them with a rod of iron, and you shall
dash them to pieces like pottery. मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा। तू कुम्हार के बर्तन की नाई उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। Notice that the son doesn't automatically inherit the nations. पुत्र अपने आप से जातियों को अपने निज भाग नहीं बना लिया है। The father wants the son to ask him for the nations and ask him for the peoples. पिता चाहता है कि पुत्र जाति जातियों को और देश देश के लोगों को मांगे। I find this very interesting. मेरे लिए बहुत ही ये दिलचस्प लगा। In a relationship, the father wants the son to ask for a good gift, even though the father could have just given it anyway. इन रिश्तों में परमेश्वर चाहता है कि एक अच्छे वरदान अपना पुत्र उसे मांगे। वो मांगने से पहले ही पिता ऐसे ही दे सकते हैं। It's like King David was listening in to a heavenly conversation that would take place many years later on earth. ऐसा लग रहा था कि राजा दाऊद उस स्वर्गीय स्थानों में इन बातों को वो सुन रहा था जो कई सालों के बाद में होने वाला है। Do you remember in the Garden of Gethsemane, shortly before Yeshua was going to be crucified, do you remember what he prayed? आपको मालूम है गेत्सेमने के बगीचे में यीशुआ क्रूस पे मरने से पहले क्या उन्होंने प्रार्थना किया? He said, Father, I desire that they would be with me where I am. Father, I desire that they would see my glory where I am. पिता, मैं चाहता हूं कि जहां मैं वो हूं वो भी मेरे साथ होने पाएं उस महिमा में, और जो महिमा मैं देख रहा हूं उसे भी वो देखने पाएं। The main responsibility of a priest is to pray to the Father. याजक की एक महत्वपूर्ण कर्तव्य यह है कि पिता से प्रार्थना करें। In Old English, the word pray actually is the same word as ask. पुरानी भाषा में अंग्रेजी में प्रार्थना के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है कि मांगे। So you could say, Father, I'm praying, I'm asking you to give me my people, that they would all be gathered unto me. कि आप कह सकते, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं मांगता हूँ कि मेरे लोगों को मेरे लिए होने के लिए मुझे दे दे। And King David was listening in the spirit to a conversation about Yeshua's priestly role of asking the Father. राजा दाऊद जो है आत्मा में उस मसीहा को, उस परमेश्वर से मांगने वाली इस बातों को आत्मा में देख रहे हैं। It amazes me that King David had so much prophetic insight. और मुझे बहुत ही ताज्जुब होता है कि राजा दाऊद के पास ऐसे भविष्यवाणी रूपी एक ऐसी प्रकाशन है। That 1,000 years before the Lord was born, King David knew that the Father wanted his son on earth to be a priest, asking and asking for every good thing. 1000 साल पहले ही राजा दाऊद ने देखा कि पिता चाहते हैं कि पुत्र उससे भली वस्तुओं को मांगने लग जाएं। And that's why prayer was the center of Yeshua's ministry. और इसीलिए यीशुआ की सेवकाई के लिए प्रार्थना उनके लिए केंद्र भाग रहा है। All those acts of power and acts of mercy that he did when he walked on the earth. हर एक जो सामर्थ के कार्य जिस पृथ्वी में होते उन्होंने किया है, और दया के कार्य जो उन्होंने किया है, Nothing happened automatically. कोई भी बात अपने आप से नहीं हुआ है। He prayed for those things. He asked his Father, give me these people. और उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया है, मांगा है, इस अच्छे वरदान को मुझे दीजिए। So once we understand that every good thing comes through prayer, it should help encourage us to pray much more. और इसीलिए हमें मालूम होता है कि हर एक भली वरदान पिता से मिलता है, तो वो हमें प्रोत्साहन करना है कि हम पिता से मांगने लग जाएं। We even see in the New Testament, in the book of James, he said, you don't have what you want because you're not asking, which is the same as saying you're not praying. और इसीलिए हम नए नियम में याकूब की पत्री में देखते हैं कि तुम्हारे पास वो है नहीं क्योंकि तुमने पिता से मांगा नहीं। So the Father says, ask me and I will give you my son. I will give you the nations. I will give you the ends of the earth. और इसीलिए पिता कहता है कि पुत्र से तुम मुझसे मांग, मैं तुम्हें जाति जाति लोगों को और देश देश के लोगों को मैं तुम्हें दे दूंगा।
Now, a high priest isn't interested in owning large pieces of property or land. याजक अपने लिए एक बड़ी जमीन या एक बड़ी संपत्ति की दिलचस्प में नहीं रहते हैं। Do you remember the priests in the Old Testament? They had no inheritance of land. आपको याद होगा पुराने नियम के याजकों के पास अपने लिए एक जमीन नहीं था। Do you remember the Lord said to the Levites, I'll give you a place to live, but you will not have any land for your own inheritance. आपको याद होगा पिता परमेश्वर ने लेवियों से कहा, मैं तुम्हारे लिए रहने के लिए स्थान दूंगा, मगर तुम्हारे लिए अपने लिए एक संपत्ति नहीं होगा। And the Lord said to the Levites, I, the Lord, I am your inheritance. You don't need property. और लेवियों से परमेश्वर ने कहा कि मैं ही तुम्हारे लिए एक संपत्ति हूँ, मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुम्हारे लिए एक और संपत्ति की जरूरत नहीं है। So if the Lord Yeshua is a higher priest than those Levites and those Aaronic priests, अगर प्रभु यीशुआ उन आरोन के अनुसार आने वाले याजकों से भी बढ़कर है, we can be sure that his inheritance is not pieces of land. और इसलिए हम निश्चय जान सकते हैं परमेश्वर की मिरास हमारे लिए इस देश का, इस संसार का एक भूमि या संपत्ति नहीं है। And so when he says, I will give you the nations and I will give you the ends of the earth, what is the Father promising? और इसीलिए हम जानते हैं कि जब पिता ने वायदा किया है, मैं तुम्हारे जाति जाति लोगों के लिए दूंगा और देश देश के लोगों को दूंगा, तो क्या मतलब रखता है? He's promising people. The inheritance is people. परमेश्वर की वायदा लोग हैं, परमेश्वर का मिरास लोग हैं। The nations are collections of people who are lost, and the Son wants them under his wings of love. जातियां और देश वो लोग हैं जो भटके हुए खोए हुए हैं और परमेश्वर से दूर हैं। So Yeshua's inheritance is us. और इसलिए यीशुआ का मिरास जो है वो हम ही हैं। The prize that he labored for is us. जिसके लिए जो कीमत उन्होंने मेहनत की है, दिया है, वो हम हैं। The bride that he paid for with royal blood is us. जिस दुल्हन के लिए उसने उस राजकीय लहू को एक कीमत के रूप में दिया है, वो दुल्हन हम ही हैं। His prize, his reward, his inheritance is a company of priests just like him. और उसका जो तोहफा और मिरास जो हमारे लिए ये है कि वो याजकों का जो समूह है जो हमें परमेश्वर ने दिए बनाया है। And this is a prayer that we, his bride, should be praying for him to receive. और यही प्रार्थना हमें करना चाहिए जो हम उसके दुल्हन हैं कि वो हमसे वो स्वीकार कर सकें। So for example, if my nation is Israel, उदाहरण स्वरूप अगर मेरी देश वो इस्राएल है, I should be praying like this. मुझे इस प्रकार प्रार्थना करना होगा। Lord, I pray that you would receive the hearts of the people of Israel as your inheritance that you paid for. पिता, इस्राएल के लोगों के हृदय को तो स्वीकार कर, क्योंकि आपने उसे जो है एक मिरास के रूप में हमें दिया है। And when you pray this way, it will please the Lord because he will know that you want him to have the reward of his suffering. और अगर आप इस प्रकार प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर प्रसन्न होंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके दुख उठाने का प्रतिफल होने पाए। And after the Father promises him the nations, why does he say this in verse 9? जब परमेश्वर ने जातियों के बारे में वायदा किया है, तो 9वें पद में वो इस प्रकार क्यों कहते हैं? He says, you shall break them with a rod of iron and dash them to pieces like pottery. और कहते हैं कि लोहे के डंडे से उन्हें टुकड़ा टुकड़ा कर सकता है और उन्हें कुम्हार के नाई चिकनाचूर कर सकता है। Because some in the nations will give their hearts to Yeshua voluntarily. क्योंकि उस जातियों के लोगों में लोग कुछ अपने स्वयं इच्छा के साथ हृदय पिता परमेश्वर के लिए और पुत्र यीशु मसीह के लिए देंगे। But some individuals and governments will not give their hearts voluntarily, and those are the ones that have to be broken with a rod of iron. मगर कुछ ऐसे व्यक्ति और कुछ ऐसे प्रभुता के लोग अपने आप को परमेश्वर के लिए स्वयं इच्छा के अनुसार नहीं देंगे और उनके लिए परमेश्वर लोहे के डंडे से वर्ताव करेंगे। And before we close this lesson, I'd like you to turn to the book of Revelation, chapter 2.
हम इस पाठ को खत्म करने से पहले हम चाहते हैं कि प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय को खोल लें। I would like us to look at verse 26 and 27. हम चाहते हैं कि हम 26 और 27वें पद की ओर देखें। Remember, this part of Revelation is the letters to the churches that the Lord Jesus Christ is speaking about what the overcomers will receive. इस वचनों के भाग आप जानते हैं कि एक ऐसा पत्र जो कलीसियाओं के लिए देते हैं, जो लोग जयवंत होंगे उनके लिए पिता परमेश्वर क्या देने वाले हैं। Verse 26, and he who overcomes and keeps my works until the end, to him I will give authority over the nations, and he will rule them with a rod of iron, and they will be dashed to pieces like pottery, as I also received from my Father. जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाता है, जैसे कि मैंने भी ऐसे ही अधिकार अपने पिता से पाया है। You remember what we just read in Psalm 2, that the Father gave that authority to the Son. हमें याद होगा कि भजन 2 में अभी हमने अध्ययन किया, ये अधिकार पिता ने अपने पुत्र को दिया है। To give him authority over the nations and to dash the rebels with a rod of iron. और जाति जाति लोगों के ऊपर वो अधिकार दें ताकि लोहे के राजदंड से उन्हें टुकड़े टुकड़े कर सकें। And here the Lord Yeshua exactly quotes Psalm 2 and gives the same promise to any of us who will overcome. और वही वायदा यीशुआ उन लोगों को देते हैं जो अभी उस पर जय पाएंगे। As the Father gave to Yeshua, Yeshua gives to us. पिता ने यीशुआ को दिया और यीशुआ हमें देते हैं। He shares all of his Psalm 2 inheritance with us who overcome. भजन 2 के हर मिरास हमसे बांटते हैं उन लोगों के लिए जो उसमें जय पाते हैं। We will continue this discussion of the Melchizedek priesthood in our next episode. हमारे अगले सत्र में मेल्किजेदेक की रीति पर की याजक के विषय में चर्चा जारी रखेंगे। And until then, let's rejoice in how generous our Lord has been to us. तब तक जो है हम आनंद उठाएं कि ये जानते हैं कि पिता परमेश्वर हम पर कितना उद्धारता से कार्य किए हैं। Amen. आमीन। I stretched out my arm to you.
his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace.